Okay, dear students, your जैसा कि आप जानते हैं कि your JEE Advance, the dates for the JEE Advance examination has been announced, and if everything goes well, then it is highly anticipated that the exam should be conducted on their announced dates only. So this is one thing. So अपने दिमाग में कोई पशोपेश की हालत में मत रहो कि पता नहीं एग्जाम्स कब होंगे, तैयारी किस तरह से चल रही है. I know the situation you are undergoing is a bit frustrating, but the whole country and the whole entire world is facing the catastrophe. So just have faith and keep working hard. This is very important. Keep working hard. You have to work hard, and आप जितना आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा. That is a philosophical thing, but that is very important. So आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ to discuss some good questions. There are a couple of problems which will test your basics, and in this series of lecture we will be doing the things like this. We'll be discussing the whole we'll be discussing the questions, and I'll be telling you the concepts behind those questions, and we will be learning in that way only. First thing is that, and the second point is कि चूंकि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकते अभी अगले 2 महीने में, तो हम क्वेश्चन से ही चीज़ों को कवर करते रहेंगे. और ओके, मैं जानता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपने अपने लेवल पे काफ़ी मेहनत की होगी, बट इवन देन बच्चा लोग, इफ़ यू फील दैट यू आर वीक एट समथिंग, रिलेटिवली आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आपको पकड़ नहीं है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क अस to come. You can comment in the comment box that okay sir, please make video on this particular chapter or this particular concept. We'll be doing that, and you can also post your doubts and questions. We will be solving that as well. Accordingly, I'll be making video and I'll be solving that. Fine. So that the important takeaway is that you have to work. You have to keep working hard. Don't think that okay, exam is going to get delayed. We are getting frustrated. That happens, but in spite of everything, keep working hard. All right, your teachers are with you, your parents are with you, Almighty is with you, so please keep working hard. All right, चलिए अब हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, सवाल की बात कर लेते हैं. तो सवाल क्या कहता है बेटा, समझिएगा ढंग से. सवाल कर रहा है कि देयर इज अ रीजन ऑफ डस्ट, और इस रीजन ऑफ डस्ट में एक सिलेंड्रिकल व्हीकल टाइप चीज है जो इसकी इस रीजन ऑफ डस्ट में जा रही है, इस रीजन ऑफ डस्ट में जा रही है, इस रीजन ऑफ डस्ट में, और इसकी रफ्तार है v. तो सोचो क्या होगा अगर v रफ्तार से जा रही है और ये डस्ट पार्टिकल्स का मास m दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी n दी हुई है, और आपको मानना है कि इन डस्ट पार्टिकल्स के बीच में नो इंटरैक्शन इन्वॉल्व, नो इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. तो ये आपके सवाल में मेंशन किया हुआ है, और कोलिजन्स जो हो रहे हैं उसके दीवार के साथ, इस सिलेंडर के दीवार के साथ, वो सारे इलास्टिक कोलिजन्स हैं. यू हैव टू कंसीडर ऑल इलास्टिक कोलिजन, ऑल इलास्टिक कोलिजन. That is important. That is important point. So keep that out, and you have your entire answer will be different. So all particles are elastic. Particles are दूर, so that they are not interacting with each other. They are interacting with the walls of the container only. And the wall has to move with the constant speed. सोचो होगा क्या कि जैसे जैसे ये अंदर आएगा, ये सारे पार्टिकल्स इससे टकराएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, और इस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो इसको डी एक्सिलरेट करने की कोशिश करेंगे, एंड यू हैव टू स्टॉप दैट डी एक्सिलरेशन. यू हैव टू कीप मूविंग दैट स्पीड वी. सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स. वो कहीं से भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी कर सकता है, इंजन फोर्स लगा सकता है, बाहर से धक्का देकर फोर्स लगाया जा सकता है, बट दैट एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी, and you have to evaluate the value of that external force which can make this container move with a constant speed in the region of this dust. तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं. अगर आपको सॉल्व करना है आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बाद में भी आंसर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कंटिन्यूअस में सॉल्व कर देता हूँ. चलिए आइए, सो देखते हैं, बात करते हैं. चलो इस रीजन के बारे में बात करते हैं, इस सिलेंडर के बारे में. सिलेंडर कुछ इस तरह से ठीक थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि हमें काफी कुछ करना है इस सवाल में. इट्स अ गुड प्रॉब्लम, प्लीज. अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छा सवाल है. और ये रीजन ऑफ डस्ट मेरा है, आ रहा है. अब सोचो, एक काम करते हैं थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए, कि मैं कहता हूं कि मैं डस्ट पार्टिकल पे ही बैठ जाता हूं, इसको रेस्ट पे कर लेता हूं, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं. तो क्या डस्ट पार्टिकल से आके टकराएंगे, वो भी वेलोसिटी से आके टकराएगा. अब सोचो
v वेलोसिटी आके टकरा रहा है, 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 सारा अंदर ही। तो जो पार्टिकल्स हाफ से रीजन से आगे निकल जाएंगे वो तो फोर्स नहीं लगाएगा, बट ये जब टकराएगा तो इस पे फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल फोर्स लगाएगा। अब जब वो फोर्स लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है बेटा, जब ये फोर्स लगाएगा, सोचो ढंग से, जब ये फोर्स लगाएगा तो हर पार्टिकल के फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा, कि लाइन ऑफ इंपैक्ट हर पार्टिकल के लिए अलग अलग है। अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू बना के दिखाता हूं तो सोचिए ऐसे सिलेंडर है पीछे की तरफ, कुछ पार्टिकल्स तो सीधा आके टकरा जाएंगे जो सीधे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऐसे आके टकराएंगे, तो इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हुआ ना नॉर्मल, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे आके टकरा रहे तो इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये हुआ है ना, तो कोलिजन इलास्टिक है, मतलब इस लाइन पे लाइन ऑफ इंपैक्ट के दौरान अलोंग वेलोसिटी चेंज हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप ई की इक्वेशन लिखते हो v2 माइनस v1, जिसको आप सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल लेते हैं, अपॉन u1 माइनस u2, ये आप लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखते हैं। सो इफ e इज 1 then it only means that its speed in the direction of component of velocity in the direction of line of impact will not change. So this is very important. चलिए अब हम बात करते हैं सवाल पे। तो मैंने आपको इसका एक व्यू दिखाया है इस तरह से करके। अब सोचो ढंग से बेटा कि आके पार्टिकल्स टकराए यहाँ पे, अब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ थीटा पे जाके एक डी थीटा का एक एलिमेंट बना लिया, कुछ इस तरह से एक एलिमेंट के बारे में कहानी यहाँ पे ऐसे चल रही है, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट बना लिया। सोचो अब इस सेगमेंट के लिए, है ना, इस सेगमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर है, इस सेगमेंट के लिए सेगमेंट लिया हमने, इस सेगमेंट के लिए थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया, इस सेगमेंट के लिए एरिया वेक्टर इधर बन के आ गया, है ना, एरिया वेक्टर इधर बन के आ गया, बहुत सही। तो अब ढंग से सोच बेटा कि इससे जो पार्टिकल्स टकराएंगे आके वो इस पे फोर्स लगाएंगे, कितने पार्टिकल्स पहले तो टकराएंगे ये जानना भी जरूरी है। इसकी नंबर डेंसिटी दी हुई है, मतलब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ था आपको, और भी कुछ डेटा दिया हुआ था, इसका रेडियस भी दिया हुआ है और आपको फोर्स निकालना था। इनफैक्ट फोर्स, इसका लेंथ आप एल मान लीजिए, तो आपको फोर्स निकालना है इस पे, है ना, कितना ड्रैग फोर्स लगाएं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस रीजन में चलता है। चलिए बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सोच बेटा कि ये जो रीजन हमने कंसीडर किया, इसका एरिया क्या लिखोगे आप, इस लाइन का एरिया, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया आर डी थीटा इंटू एल, सो डी इज आर डी थीटा इंटू। अब सोचते हैं पार्टिकल्स आके टकराए, ऐसे पार्टिकल्स ऐसे टकराए ना, तो सोचो जो पार्टिकल जो टकरा रहे हैं, पार्टिकल ऐसे, सॉरी पार्टिकल्स ऐसे आ रहे, आपका एरिया ऐसे, तो पार्टिकल्स ऐसे टकरा रहे थे ना, तो जो एरिया लोगे नंबर डेंसिटी के लिए, अगर आपने कभी रेडिएशन प्रेशर पढ़ा है तो आप फोटोन फ्लक्स निकालते थे, तो आप एरिया का कौन सा कॉम्पोनेंट लेते, ये वाला ना परपेंडिकुलर जो आ रहा है, ये एरिया लोगे ना बेटा, उस पे गिर रहा है ना परपेंडिकुलरली, तो ये एरिया ले लिया, तो इसका एक कंपोनेंट ना पड़ेगा इस एरिया का। तो सोचो डीए इंटू जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं, डीए परपेंडिकुलर, वो क्या लिख लोगे, आर डी थीटा इंटू एल इंटू कॉस थीटा। यस और नो, बिल्कुल सही है, याद है, इस पे टकराया। अब सोचो तो अब ये इसका जो ये थीटा पे जाके डी थीटा ये यहाँ पे चल रहा है, तो ये एरिया तो ऐसे था अंदर की तरफ, अब इसका हमने ये कंपोनेंट ले लिया, अब ये एरिया हो गया। अच्छा अब हम इस पे बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये पार्टिकल्स v वेलोसिटी से आके टकरा रहे हैं। ढंग से सोच, पार्टिकल्स v वेलोसिटी से आके टकरा रहे हैं बेटा, दे आर कोलाइडिंग। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स टॉक अबाउट, आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ दैट f इज इक्वल टू dp by dt, rate of change of momentum. So particles are coming, they are colliding, they will have different momentum, obviously their momentum in the direction of line of impact will get changed. Yes, this will happen definitely. So if the momentum is going to get changed, then it is going to apply a force on the cylinder. Now अब उस फोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या होगा इस पे। तो अब अगर dt टाइम की बात करें तो सोचो dt टाइम पे कितने पार्टिकल्स आके टकराए, पहले तो ये निकालना था, कितने पार्टिकल्स आके टकराए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग इन dt टाइम।
सोचो, एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये dt टाइम में ये dx स्ट्रिप जो है इतने रीजन में जितने पार्टिकल्स थे वो आके टकराए। तो सोचो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन आपस में तो हमें कंसीडर करना नहीं है, तो जितने पार्टिकल्स होंगे वो आएंगे और आके टकराएंगे। तो इस dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v dt, है ना। तो इतनी मोटाई के पार्टिकल आके इस पे टकरा रहे, टकरा के किसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इंस्टेंटेनियस लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है। इंस्टेंटेनियस शब्द, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस लाइन ऑफ इंपैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर object or that particular particle. Alright, so number of particles colliding and dt time, that is equal to what? n, capital N लिख दे रहा हूं, n into, बोलिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो एरिया ये है r d थीटा इंटू l इंटू कॉस थीटा, इसको मैं नंबर डेंसिटी n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं। अब लिखते हैं, अब सोचिए पार्टिकल्स आए, टकराए, टकरा के इधर चलेगा। अब एक पार्टिकल के बारे में अगर बात किया जाए कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, ढंग से देखते हैं इस रीजन पे कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स यहीं पे लिख दे रहा हूं, फोर्स सोचो छोटा सा फोर्स क्या लिखा जाएगा, छोटा सा फोर्स df लिख दे रहा हूं, और एक पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लिखोगे वो क्या लिखोगे, dv by dt। ढंग से सोच बेटा, वेलोसिटी v, इस लाइन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया, इस लाइन पे, इस लाइन पे ये थीटा है, सो v cos थीटा, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो ये कंपोनेंट पलटी मार देगा इधर की तरफ और यही फोर्स लगाएगा पीछे इस डायरेक्शन में, है ना। सो df क्या लिख लोगे, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। सो ये हो जाएगा आपका 2 स्मॉल m इंटू v cos थीटा फॉर वन पार्टिकल, फॉर वन पार्टिकल। अब सोचो देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल N, सो टोटल फोर्स by all particles, इसके लिए क्या लिखोगे, इसको लिए क्या लिखोगे, इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो, 2m v cos थीटा इंटू nrl इंटू cos थीटा d थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा d थीटा कर दे रहा हूं। अब सोचो इस पार्टिकल को देखो, टॉप व्यू में यहां पे फोर्स ऐसे आया है ना, जब इधर गया तो इस पे फोर्स इधर की तरफ बन के आया है, इधर की तरफ, ये पार्टिकल्स इधर की तरफ चलकर टकरा के तो इस पे फोर्स इधर की तरफ बन के आया है ना। हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे फोर्स नहीं डिपेंड करता, तो फोर्स तो वही आना था, सिचुएशन सेम हो रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं चल रहा। आप इसको चलाओ या इसको रोक के इसको चला तो बात बराबर है, फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए, सो 2mv स्क्वायर cos थीटा d थीटा, ध्यान से देखो, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बने, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये थीटा था मेरा, सो दिस इज माय df cos थीटा, df sin थीटा, df sin थीटा कैंसल, इधर df cos थीटा। तो सोचो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ df cos थीटा, है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो बचे तो सिर्फ इधर वाले। सब लिख लेते हैं टोटल फोर्स के लिए, इंटीग्रेटर वैल्यू है ये, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mv स्क्वायर, ट्वाइस ट्वाइस 4 हो जाएगा, df को उठा के रख दे रहा हूं, तो mv cos स्क्वायर थीटा की जगह पे cos क्यूब थीटा nrl d थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट बोलो, सोचो ढंग से, क्या है, यहां से लेके यहां तक, है ना, क्योंकि बाकी सारे पार्टिकल्स दूसरे वाले अपने आप आ रहे हैं। सो 0 से लेके π/2 तक, सो ये आ जाएगा आपका 4mv स्क्वायर्ड nrl cos क्यूब थीटा d थीटा। आता है इंटीग्रेट करना cos क्यूब थीटा d थीटा को, नहीं आता है, आता है, वेरी गुड। सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, मेरे सब ये फॉर्मूला होता है। सो हम लिख लेंगे cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा
प्लस 3 cos थीटा, पुट कर दो यहाँ पे बेटा cos क्यू थीटा की जगह पे, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू 4mv² nRL cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके पाई बाई 2 तक, cos 3 थीटा को इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा अपॉन 4 भी ना शायद एक, हाँ अपॉन 4 भी यहाँ पे अपॉन 4 भी हो जाएगा, अपॉन 4 ने 4 को मार दिया तो यहाँ पे 4 हटा देते हैं, mv² nRL और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन 3 प्लस 3 cos थीटा d थीटा, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और ये कितना आ जाएगा mv² nRL साइन 3 थीटा पाई बाई 2 रखेंगे -1/3 प्लस 3 cos थीटा, सॉरी कुछ कर दिया ना, 3 sin थीटा प्लस 3, है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन के आ गई हमारी फोर्स की, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, F इज इक्वल टू, फाइनल वैल्यू F इज इक्वल टू बन के आई mv² nRL into 8/3 and this is the answer. परफेक्ट, एकदम सही है। तो इस सवाल में काफी कुछ करना था आपको, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा, बिकॉज फोर्सेस के डायरेक्शंस अलग अलग थे, है ना। All the points were not colliding in the same direction. They were colliding in the different direction depending upon their line of impact, where they are colliding with the cylinder. तो काफी कुछ करना था इस सवाल में, बट ये बढ़िया सवाल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, नहीं ट्राई कर पाए तो एक बार आप सॉल्यूशन को फिर रेफर कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए हम एक और सवाल करते हैं। ये सवाल है एसएचएम का, काफी अच्छे सवाल लेकर मैं आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। आप सिर्फ मेहनत करने का जज्बा रखो, काम कोशिश करो कि मैं आपको कराऊं। चलिए दूसरा सवाल है एसएचएम का। चलिए एसएचएम के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया, ये सवाल जेईई में आ चुका है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा सवाल है। जेईई वाले जब पूछा था तो डायमेंशनल एनालिसिस कई बच्चों ने सॉल्व किया था, मैं आपको इसका एक अच्छा सोल्यूशन देता हूं। आप जानते हैं कि फोर्स बराबर एसएचएम में -kx टाइप चीज होती है, लीनियर होता है और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स होता है। बट मैंने कह दिया कि तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बन के आती है U एसएचएम में, वो आती है ½ राइट, और आप लिख लेते हैं ½mv² प्लस ½ इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू ½ और आप यहां से डिफरेंशिएट करके आप इक्वेशन लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -ω²x टाइप। मैंने पूछा ही नहीं, मैंने आपसे कुछ और पूछा। मैंने कहा कि मैंने फोर्स दिया है -k mod of x³ टाइप फोर्स दिया है आपको मैंने। क्लियर है, ये मैंने आपको फोर्स दिया है, ये मैंने आपको फोर्स दिया है, ये -kx टाइप की मान लो, -kx³ टाइप की मान लो, अभी ले लेता हूं, ठीक है। मैंने आपको ये फोर्स दिया है, तो सोचो इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हैं? इंटीग्रेट कर लोगे इसको, kx4/4, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ था। जेईई ने ये बोला था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जो है वो इस हिसाब से दिया हुआ था आपको। अब सोचते हैं बेटा ढंग से कि अगर ये u दिया हुआ है आपका, तो अब आप ढंग से समझें, उसने कहा कि टाइम पीरियड का डिपेंडेंस बोला था, डिपेंडेंस ऑन एम्पलीट्यूड। आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, लेकिन पहले इस सवाल को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। आई होप कि आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल करते हैं। मेरे पास है बेटा, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख दे रहा हूं, ½ mv² किसी भी इंस्टेंट पे प्लस ½ kx4 where x is the distance from the mean position that is equal to ½ 1/4। सिर्फ
without losing the generality I can write it down. Otherwise this constant could have been different depending upon कि k के साथ क्या multiply हो रहा है. But to keep the things simple I have done this. This is the total energy, and I have considered that there is no energy at the no potential energy at the mean position. So that is the case. At mean position, potential energy is 0. All right. So what you can say? What you can say? Okay, what is V? Let's suppose now I am asking how time period is going to depend on the amplitude. कभी सोचा है कि what is so special about SHM? What is it which makes the SHM so beautiful? Yes, time period is independent of the amplitude of the motion. अगर कोई एक SHM कर रहा है particle and so far it is in the realm of SHM, the time period is going to be independent of the SHM. मतलब यहाँ amplitude इतना हो, time period same रहेगा. If it follows f is equal to minus kx or tau is equal to minus k theta. If it follows, then I am guaranteed that the time period is going to be independent of whatever the amplitude it is. Amplitude बड़ा हो छोटा हो, अगर मैं कोई भी एक पोटेंशियल वेल बनाता हूँ, पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाए, पोटेंशियल का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, v का u का x के साथ, ये एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, बट इन सब का टाइम पीरियड सेम होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. ये तब हुआ जब f फोर्स जो था वो x के प्रोपोर्शनल था और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था. बट अब मेरे पास ये लिबर्टी नहीं है, बट अभी भी हम कर सकते हैं. हालांकि जब जेई में आया था तो उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस से करवा लिया था बच्चों से, पर मैं चाहता हूं कि आप सोचें थोड़ा सा. अब सोचो क्या, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हो रहा होगा, तो एक बात तो तय है कि कोई भी टाइम पीरियड हो. अब सोचो f बराबर माइनस के एक्स क्यूब टाइप चीज है. इसका मतलब यही हुआ कि पार्टिकल जो है वो ढंग से जो देखा जाए तो एसएचएम टाइप चीज तो अभी भी कर रहा है. एसएचएम टाइप चीज बोल रहा हूं, वो तो अभी भी कर रहा है. मतलब पार्टिकल अभी भी यहां से आगे जब जाएगा, फिर वापस आएगा. बट फोर्स इज नॉट नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू एक्स. फोर्स इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना. बट यहां से यहां जाने में, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, यहां से आने में टाइम पीरियड टाइम लगेगी. द टाइम टेकन विल बी कैपिटल T. So first let's talk about the time which it takes from here to here. मुझे नहीं पता कि क्या टाइम है, but I can say कि let's suppose मैंने कह दिया कि यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो T/4 लगेगा. ये तो तय है, T/4. वेरी गुड. मैं सोचता हूँ छोटा सा टाइम देखते हैं कहीं पे, यहां से यहां आने में dx डिस्टेंस चलने में जो छोटा सा टाइम था वो dt था. तो मैं dt को लिख सकता हूँ dx/v. तो यहां से यहां जो जाने में टाइम लगेगा वो T/4 है. उसको अगर मैं कुछ और डिफाइन कर दूं तो सोचो ढंग से कि यहां से यहां जाने में, जीरो से एम्पलीट्यूड पे जाने में, अगर मैं इसको जीरो से लेके एम्पलीट्यूड तक इंटीग्रेट करता हूं तो टाइम पीरियड का 4 है. दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड का 4. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा. बट दिस स्टिल गारंटीज मी दैट दिस 4 हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शनलिटी टाइप ऑफ थिंग. सो लेट्स ट्राई इट आउट. अब सोचते हैं थोड़ा सा. चलिए, तो हम पहले dx/v, सॉरी dx/v that is equal to T/4. नाउ सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे dx/4 लिखा था, dx/v थोड़ा सा टाइम. सो ओके, लेट्स डू इट. सो लेट्स फाइंड हाफ mv स्क्वायर, one half mv स्क्वायर प्लस that is equal to 1/4 of, let's take k out of it, a4 minus x की पावर 4. 2 ने 2 को मार दिया बेटा. सो v is equal to 1/2 k upon m a4 minus x की पावर 4 की पावर half. Alright, so this is my velocity, or let's do it this way. Alright, so what is small time? dt is equal to dx upon k/2n a4 minus x की पावर 4 अंडर रूट. चलो हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं सब कुछ. ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k
dx upon a4 minus x4 under root 0 से लेके a तक। ना ये इंटीग्रेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आपको काफी मुश्किल होगा इंटीग्रेशन करना, बट हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। तो अब इसका तरीका देखते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे करेंगे। we will try to circumvent the problem, we will try to circumvent the problem in such a way that कि हमें सिर्फ और सिर्फ proportionality चाहिए। I don't know, I don't need anything, I don't care how it is going to vary, what is the constant here, I don't care, I really don't care what is that. What I care about is how the time period is going to be independent of how time period is going to depend on amplitude. Okay, so this is my dt और ये जो टोटल टाइम होगा ये मेरा t/4 है ना, दैट इज अ सिंपल थिंग, मैं आपको पहले बता चुका हूं। सो t इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूं आपके लिए। तो हम अगर उसको उधर लेके आए तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8m/k, वो इधर लेके गए, अंदर ले लिया उसको, dx अपॉन a4 माइनस x⁴। चलिए अब हम लोग यहाँ पे और सोचते हैं, ये अंडर रूट है पूरा आपका। बट हम एक काम करते हैं, हम विदाउट लूजिंग द जनरलिटी व्हाट आई कैन डू, लेट्स सपोज यहाँ से हमने a4 को कॉमन ले बाहर खींच लिया, ऐसे करो आप, dx इज इक्वल टू 1 माइनस x4 अपॉन a⁴ अंडर रूट 0 से लेके a तक अंडर रूट ऑफ 8m अपॉन k। सो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए x/a को मैं t पुट कर देता हूं। जब मैं x/a को t पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t मत मानिए क्योंकि t ऑलरेडी मेरे पास है उधर, तो u मान लो, au मान लो, तो dx इज इक्वल टू a du, ऑब्वियसली u इज गोइंग टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ x, एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट। ऑलराइट, सो dx इज इक्वल टू a du, नाउ पुट इट ओवर हियर। सो ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 8m अपॉन k। ऑलराइट, सो दिस वैल्यू विल बी, जब आप इसको 0 रखोगे तो ये 0 होगा, और जब आप इसको a रख दोगे यहाँ पे तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0 से लेके 1 तक, और यहाँ पे आपका a² बाहर आ चुका है, a² मैं बाहर खींच लेता हूं। अब देखना यहाँ पे dx अपॉन 1 माइनस x4 1 माइनस u4, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे समझें, मैं मानता हूं या कुछ भी हो या कुछ भी इंटीग्रेशन बन के है, बट दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, ये कुछ भी है तो ये फाइनाइट वैल्यू है ना, सो दिस इज अ कांस्टेंट। For whatever value it takes, I don't care. I don't give a damn. But this is a finite value, and this thing is the value which will depend on it. तो बताओ, अगर मैं सबको कांस्टेंट ले लूं, so t is some another constant. This whole term is a constant upon a². Yes or no? So the time period is going to be proportional to 1 upon a² फॉर द मोशन लाइक दिस। अब आप एक काम कीजिए, आप x को कुछ भी मान लीजिए, x की पावर आप n ले लीजिए, यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन बनाइए, और उसके बाद आप उसको जनरलाइज कीजिए, और आप वहां पे x की जगह पे जो भी पावर आ रहा है वो आप वहां पे रख के देखिए, आपको वो नॉर्मल सोल्यूशन दे देगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर यहीं पे अगर आप सोचें कि यहाँ kx² कर देते आप, अच्छा मैंने कुछ, एक सेकेंड, ओके सॉरी, dx is equal to a du, sorry, इसलिए मैंने a को मान लिया, sorry, 1/a, so this is proportional to 1/a, this is proportional to 1/a, so this is very important point, this is very important। see, अगर मान लेते हैं कि मेरा एक पोटेंशियल वेल कुछ इस तरह से था कि x की पावर 4, ऑब्वियसली ये भी एक सॉर्ट ऑफ पैराबोला ही होगा जो कि नीचे थोड़ा फ्लैट टाइप का होगा, बट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मान लेते हैं 3 टाइप ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे थे। आई नीड टू बी वेरी मच केयरफुल एंड डोंट नीड टू यूज SHM, दिस इज नॉट नो लॉन्गर एन SHM। सो अगर यहां से यहां तक एक मोशन हो रहा है, कि यहां से यहां हो रहा है, कि यहां से यहां हो रहा है, तो ढंग से सोचो बेटा कि
इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दिस विल टेक वे लॉन्गर टाइम। एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कि वहां पे फोर्स जो है वो के एक्स की वैल्यू जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, वहां पे फोर्स की वैल्यू जो है वो उतनी ज्यादा होती जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। So this is the reason behind that, क्योंकि k is no longer proportional to x, it is proportional to third power of x. So this is the case. सोचो अगर x का स्क्वायर कर दोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, वहां से a स्क्वायर बाहर खींचोगे तो a कट जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो वहां से भी समझ में आता है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे और ये दोनों ही सवाल अच्छे थे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड प्लीज टेक केयर। फाइन, ओके, बाय बाय।